जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 1:2 देखते हैं, जहां धरती बिल्कुल सुनसान थी, it actually means that the earth became without form. इसका मतलब था कि धरती जो थी वो बिना आकार की हो गई थी। So understand this, beloved. तो समझो ये बात को। If God already had the earth made, और अगर परमेश्वर ने पहले ही धरती बना ली है, then what is it that caused the earth to become without form, to become void? तब वो बिना आकार की क्यों हो गई, सुनसान क्यों हो गई? If God had already made the earth, अगर परमेश्वर ने पहले ही इस धरती को बना दिया था, then what is it that we see in Genesis chapter 1, and we understand that after he made everything, he made man. और जब हमने पहले अध्याय और पहले वचन में ये देखा कि उसने ये धरती बनाई, उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया। So that means when he made man, that was not the beginning. और इसका मतलब है कि जब उसने मनुष्य को बनाया, वह शुरुआत न थी। The earth was not made 6,000 years ago. 6000 साल पहले धरती नहीं बनाई गई। The earth was made millions of years before. अरबों साल पहले धरती बनाई गई थी। And after that, verse 2 says और उसके बाद वचन दूसरा कहता है that everything was without form and void and empty. कि हर एक चीज सुनसान खाली पड़ी हुई थी। You know, when you read science, और आप जब विज्ञान के बारे में कुछ सीखते हैं, when you listen to the news, और जब आप समाचार को सुनते हैं, what is it that you hear? क्या सुनते हैं आप? That there were dinosaurs on earth. कि डायनासोर्स थे धरती पर, And after millions of years, they found them. और अरबों साल के बाद उनकी हड्डियां मिली The हैं। archaeologists have found things that existed millions of years ago. और लोगों को वो चीजें मिली है जो अरबों साल पहले थी। The reason being और इसका कारण यह है that the earth was in existence before 6,000 years ago. इसका मतलब यह है कि धरती जो है 6000 साल पहले बन चुकी थी। And my dear beloved, और मेरे प्यारो, as you go on in Genesis chapter 1 और आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उत्पत्ति के अध्याय 1 में and in verse 3, और 3रा वचन देखेंगे, it tells you that God said, "Let there be light," and there was light. और 3रा वचन कहता है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया। You know, when the first word said, और आप ये जानते हैं कि जो पहला शब्द कहा गया, it said God created. कि परमेश्वर ने रचा। And the third verse says, God said, "Let there be light." और 3रा वचन कहता है कि प्रभु ने कहा उजियाला हो जाए। See, when you create something, you make something. और जब आप कोई चीज की सृष्टि करते हो, किसी चीज को रचते हो, And when you say, "Let there be light," you give permission that the light light itself. और तब आप उस चीज को अनुमति देते हो कि वो जो है वो अपना काम करे। And my dear friends, और मेरे प्यारे, the Bible says बाइबल कहती है in verse 4 that God saw the light and it was good, and the Lord divided the light from darkness. और 4था वचन कहता है परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि वो अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला और अंधियारे को अलग किया। Oh, if you will pay attention in verse 4, अगर आप ध्यान देंगे ये 4थे वचन में, there is a mention of God separating light and darkness. और यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर ने उजियाले को और अंधियारे को अलग किया। And the mention of him separating light and darkness. और यहाँ पर बताया गया है कि उजियाला और अंधियारा अलग किया है। If you see verse 4, और अगर आप ध्यान दें, you will notice that there is a mention of light. और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उजियाले के बारे में बताया Then है, there is a mention of God separating light and darkness. और ये भी बताया गया है कि परमेश्वर ने उजियाला और अंधियारे को अलग किया। Then it also mentions और भी एक चीज बताता है that the light became the day and the darkness became the night. और जो उजियाला था वो दिन बन गया, और जो अंधियारा था वो रात बन गया। But does it mention anywhere लेकिन क्या ये बात कहीं यहाँ पर बताई गई है that the light was the sun or the moon? कि वो जो उजियाला था वो सूरज या चांद का था? No, my friends. नहीं मेरे प्यारों, The reason is उसका वजह यह है that this light that the Bible is talking about ये उजियाला जिसके बारे में बाइबल बता रही है, is not yet about the sun and the moon. और ये जो है वो सूरज और चांद के बारे में नहीं है। The sun and the moon were created by God millions of years ago.
और ये सूरज और चांद अरबों साल पहले परमेश्वर ने रच दिया था। But this light that God is talking about लेकिन ये उजियाला जिसके बारे में परमेश्वर कह रहे हैं is the light that had once shone upon the earth. और वो उजियाले के बारे में बात कर रही है जो कभी इस धरती को प्रकाश देती थी। My dear beloved, मेरे प्यारो, after that light had shone on the earth, और जब वो प्रकाश धरती पर आया, there was something that had stopped that light from shining on the earth. और कोई ऐसी चीज थी जो उस रोशनी को धरती पर चमकने नहीं देती थी। And when the light does not shine, और जब रोशनी नहीं चमकती है, what is the result of that? तब उसका परिणाम क्या होता है? There is darkness. तब अंधियारा छा जाता What है। we see in Genesis chapter 1, और हम क्या देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय 1 में from verse 2 onwards, और दूसरे वचन से हम देखते हैं that God is once again allowing the light to come on the earth. कि परमेश्वर एक बार फिर रोशनी को अनुमति देते हैं कि वह इस धरती पर उजियाला फैलाए। You know, you can go on and see what else God permitted and what God created in chapter 1 and 2. और इस तरह से आगे आप जाके देखेंगे कि क्या परमेश्वर ने किस चीज की रचना की थी और किस चीज को परमेश्वर ने अनुमति दी थी। And the proof of what I was talking about और उसका सबूत जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रही हूँ is in the Word of God. वो परमेश्वर के वचन में है। And the Word of God translates itself, it explains itself. और परमेश्वर का वचन खुद ही अपने आप में अनुवाद करता है, समझाता है। And as God made the first day, the second day, the third day, the fourth day, and so on. और जैसे ही परमेश्वर ने पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और इस तरीके से दिन बनाते गए। If you will read chapter 1, you will find in verse 16 that then God brought the greater light and the lighter light, which is the sun and the moon. और उसी तरह से जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो 16 वचन में आप देखेंगे कि फिर परमेश्वर और उजाला इस धरती पर लेकर आए जो चांद और सूरज का था। He made them. और उसने उससे बनाया। But before he made the sun to give you light by the day and the moon to give you light at night, लेकिन इससे पहले कि उन्होंने सूरज बनाया कि दिन के टाइम वो आपको रोशनी दे और चांद बनाया कि वो रात के समय आपको रोशनी दे, there is a light he's talking about. और एक उजियाले के बारे में वो बात कर रहे What हैं। is that light? और वो कौन सा उजियाला है? And if that light existed on earth for millions of years, और अगर वो उजियाला अरबों साल से इस धरती पर था, what stopped it? क्या बात ने उसे रोक लिया था? And why did God have to restart it? और क्यों फिर से दोबारा परमेश्वर को शुरू करना पड़ा? We're going to go further next week. और अगले हफ्ते हम आगे बढ़ेंगे। And if you have just joined us in the study, और अभी अभी आप जुड़े हैं जब हमने हमारा ये प्रचार शुरू किया है, I would advise you to read Genesis chapter 1. और हम आपको सलाह देंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक 1 आप जरूर पढ़ें, Because that is the chapter that will give you a wider understanding. और यही अध्याय है जो आपको काफी समझ देगा। And it will tell you what God is talking about. और यही अध्याय आपको बताएगा कि किसके बारे में परमेश्वर आपसे बात कर रहे See, हैं। my dear beloved, देखो मेरे प्यारो, we are not preaching religion. हम किसी धर्म का प्रचार करने नहीं आए हैं, We are preaching God. हम परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। And God who created the heavens and the earth. और वो परमेश्वर जिसने इस धरती और आसमान को रचा है, He has given us this word. और उसने हमें ये वचन दिया है, And it is the word of God that speaks to us. और ये परमेश्वर का वचन हमसे बात करता And है, it tells us और वो हमको बताता है, what you and I need to know about the truth. और ये हमें बताता है कि क्या सच्चाई आपको और मुझको जाननी चाहिए। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, you will know the truth और बाइबल कहती है कि आप सच्चाई को जानेंगे and the truth will set you free. और वह सच्चाई आपको आजादी देगी। Today we want to pray for you आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते that हैं, until we meet again next week, और जब तक हम दूसरे हफ्ते मिले, let the truth remain in you. हम यही मांगते हैं कि वह सच्चाई आप में बनी रहे। Father, we just pray over every viewer. हे पिता, हर एक देखने वाले के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं, And even as we are bringing this study, और जैसे हम ये शिक्षा उनके पास ला रहे we हैं, ask that you will give each one of us wisdom and understanding. हम मांगते हैं प्रभु जी हर एक जन को आप बुद्धि और समझ देंगे। Lord, we want that we understand you.
हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हम आपको समझें, We do not only come before you because we have needs, और इसीलिए नहीं आपके सामने आए क्योंकि हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं, but we believe what your word has said. लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आपके वचन ने जो कुछ भी कहा है Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, कि सबसे पहले परमेश्वर को और उसकी धार्मिकता को खोज करो, and all these things will be added unto और you. हर एक चीज तुम्हें दे दी जाएगी। So we are out here to pursue and seeking the kingdom of God. और यहाँ पर हम ये परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे, We want to know the truth, हम सच्चाई को जानना चाहते हैं, and we want to be free. और हम आजाद होना चाहते Today I हैं। pray that you be free from fear. और आज हम प्रार्थना करते हैं हर डर से आप आजाद हो जाएं, You be free from whatever the news says. और आप आजाद हो जाएं हर एक बात से जो न्यूज़ कहती है, Because God has come to you with the good news. क्योंकि परमेश्वर आपके पास शुभ समाचार लेकर आए हैं, And that good news will change everything for और you. वह शुभ समाचार हर एक चीज को बदल देगा। And we pray until we meet again. और हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम दोबारा मिले तब तक Let Jesus be Lord. कि यीशु ही परमेश्वर बना रहे। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।